لیاری میں 70 دن میں 7 منزلہ عمارت کی غیر قانونی تعمیر کا انکشاف، سندھ ہائی کورٹ کا ایکشن، ایس پی سی اے سمیت اداروں کو نوٹس، غیر قانونی تعمیرات پر شہری کی درخواست عدالت میں زیر سماعت۔ عدالت نے فریقین سے 26 اگست کو جواب طلب کر لیا ہے۔ جواد آصف ہمارے ساتھی موجود ہیں، مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جواد بتائیے گا۔ جی، سندھ ہائی کورٹ میں لیاری میں غیر قانونی طور پر 70 دن میں 7 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کا معاملہ ہے، جس پر اس کے خلاف درخواست ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست پر ایس بی سی حکام سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے فریقین سے 26 اگست تک جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست میں سندھ حکومت، ایس پی سی اے، اینٹی انکروچمنٹ، لینڈ ڈپارٹمنٹ کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ درخواست میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایس پی سی اے نیوز حسن لغاری اور کشن چند بھی فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ لیاری کے علاقے آگرہ تاج میں بلڈرز کی جانب سے غیر قانونی طور پر عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ بلڈر کی جانب سے 70 دن میں 7 منزلہ عمارت تعمیر کر دی گئی ہے، جو ایس بی سی اے کے قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس میں ناقص مٹیریل بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایس بی سی اے کو متعدد بار شکایت کی گئی ہے، تاہم کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے 13 افراد بھی جاں بحق ہو چکے ہیں اور اس عمارت کی تعمیر سے انسانی جان کو داؤ پر لگایا گیا ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ غیر قانونی عمارت کو مسمار کرنے کا حکم دیا جائے۔ جی جواد آصف اپڈیٹ کر رہے تھے، ساتھ رہیے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت 4 ملزمان کی ضمانت کی درخواست مسترد۔ زیر حراست ملزم کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکالنے کا کیس، 9 لاکھ روپے کی برآمدگی، عدالت میں اہم پیش رفت۔ ملزمان فی الوقت ضمانت کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ مزید تفصیلات جواد آصف سے جانتے ہیں۔ جواد بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، زیر حراست ملزم کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کے کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی جیل کمپلیکس میں ہوئی، جہاں پر عدالت نے ایس آئی یو کے برطرف اہلکار سمیت 4 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ مقدمہ ابتدائی تحقیقات کے مراحل میں ہے، ملزمان فی الوقت ضمانت کی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم اویس نے زیر حراست ملزم نعمان کے بینک اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے شریک ملزم قاسم حیدر کو منتقل کی، جبکہ ملزمان کے قبضے سے 9 لاکھ روپے کی رقم برآمد کی جا چکی ہے۔ عدالت نے کہا کہ متاثرہ فریق نے ملزمان کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تاہم مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ ناقابل راضی ہیں۔ اس مرحلے پر متاثرہ فریق کی رضامندی کو مد نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ جی جواد آصف اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، شہر قائد میں حادثات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق رواں ماہ مختلف حادثات میں 70 افراد جاں بحق اور 31 زخمی ہوئے، جبکہ رواں سال اب تک 347 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دورے شہوار سے۔ دورے شہوار بتائیے گا۔ جی بالکل، مختلف ریسکیو کے جاری کردہ اعداد و شمار صرف سٹی 21 کی سکرین پر نشر ہونے جا رہے ہیں، جس میں یہ مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اس ماہ جو ہے 70 ہو گئی ہے، جبکہ 31 افراد جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اگر ہم رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی اعداد و شمار کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو 347 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 443 افراد مختلف ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ماہانہ اگر ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو جنوری میں 83 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق، جبکہ 110 افراد زخمی۔ فروری کے مہینے میں 98 افراد جاں بحق، جبکہ 63 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مارچ میں 96 افراد جاں بحق، جبکہ 239 افراد مختلف ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس مہینے اگر ہم ہیوی وہیکلز پر نظر ڈالیں تو 25 حادثات جو ہیں 25 حادثات ہیوی وہیکلز کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں، جس میں مختلف جو ہے افراد ہوئے ہیں۔ جی، سیشن عدالت جنوبی میں پولیس مقابلہ اور اقدام قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کی 2 مقدمات میں ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد۔ جی، پولیس مقابلے کے دوران ملزم کی گرفتاری اور اس سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے کا مقدمہ ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں ملزم عرفان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے دونوں مقدمات میں ملزم کی ضمانت منظور کر لی ہے اور اسے فی مقدمہ 30,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم بھی صادر فرما دیا ہے، جبکہ عدالت نے جیل حکم کو خط بھی ارسال کر دیا کہ ملزم اگر کسی اور مقدمے میں نامزد یا مطلوب نہیں ہے تو اسے رہا کر دیا جائے۔ ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل حکام کے حوالے کیا تھا۔ ملزم کے خلاف 2 مقدمات تھے جو تھانہ عیدگاہ میں درج کیے گئے تھے۔ ایک مقدمہ پولیس مقابلہ اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت، جبکہ دوسرا مقدمہ ہے وہ سندھ آرمز ایکٹ کے تحت درج کیا گیا تھا۔
मशरिक़ वस्ती में कशीदा सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुँच गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत फ़ी लीटर कीमत में 26 रुपये से ज़ायद इजाफा किया गया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल की आग ने एक बार फिर आवाम की जेबें जला दी। आलमी कीमतों का तूफान पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी ले आया। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, जिसके असरात पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक पर भी पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजमूई तौर पर 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक मुल्क भर में फौरी तौर पर कर दिया गया है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कहा कि आमदन पहले ही महदूद है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा घरेलू बजट पर बोझ डाल रहा है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करके 200 से 250 रुपये फ़ी लीटर की सतह पर लाया जाए। 1000 रुपये दिहाड़ी है, उसमें से 500 रुपये का पेट्रोल निकल जाता है, बाकी बचता क्या है? हमारे लिए तो मजबूरी है, अब क्या करें? क्या होना चाहिए पेट्रोल की कीमत वही पुरानी 250 रुपये होनी चाहिए, कम से कम 200 के करीब, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा गरीब है, मजदूर है, पैसे वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जो गरीब तबका है उसके लिए ज़्यादा परेशानी होगी। जो मुसाफिर जो बसों में सफ़र करते हैं, बाइकों में सफ़र करते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का बाज़ बनेगा ये। माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा जारी रहा तो मुल्क में महंगाई का दबाव मज़ीद बढ़ सकता है और इसके असरात बराह रास्त आम सारिफ तक पहुँचेंगे। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने अंदरून सिंध जाने वाली बसों के किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमत बढ़ने के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी बन गई है। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। और जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स भी किरायों में इजाफे का ऐलान जो है वो करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में और यहाँ से बड़ी तादाद में बसें जो है वो अंदरूने सिंध जो है वो जाती हैं। बसों के अड्डे यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बाईस आप क्या किरायों में इजाफा भी करेंगे? जरूर इजाफा करेंगे ना। डीजल 3 दफा बढ़ा है, एक दफा 55 रुपए बढ़ गया, फिर दूसरी दफा फिर बढ़ गया 158-57 रुपए, रात को फिर 28 रुपए बढ़ गया। तो हम मजबूरन होकर फिर वो करेंगे ना, किराए बढ़ाएंगे ना। तो अब किसके ऊपर बोझ डाले ना, आवाम तो फिर वो जलील हो रहे, ख्वार हो रहे ना। डीजल को फिर सस्ता करना चाहिए तो हम अपने किराए भी बढ़ा देंगे। किराया बढ़ना चाहिए, हमारा किराया इस हिसाब से तो हमारे गाड़ियां नहीं चल रही है, गाड़ियां रुक रही है, सारी गाड़ियां। तो इसी वजह से जो है ना आवाम के ऊपर ये बोझ डाल रही है। आप बताइएगा, बसें यहाँ से कौन कौन से शहर जाती हैं और क्या किरायों में कितना इजाफा मुतवक्का है, कितने फीसद इजाफा होगा? जी तकरीबन यहाँ से अंदरूनी सिंध और कोयटा बलूचिस्तान के भी रूट है वगैरह, ये सब चल रहे हैं और पंजाब के भी रूट्स यहाँ से चल रहे हैं। और किराया तो लाजमी अभी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इतना रिलीफ नहीं दे सकते आवाम को। अलबत्ता परेशानी ज़्यादा हो रहा है हमारे लिए, ट्रांसपोर्ट चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और ट्रांसपोर्ट रुक रहा है और काफ़ी रुक भी है। इंशाल्लाह हुकूमत का ये सिस्टम हो गया तो ट्रांसपोर्ट में मुश्किल चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, अगर यही सूरत हाल रहेगी तो ट्रांसपोर्ट जो है वो मुश्किल से चलेगी। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर्स जो है वो किरायों में इजाफा भी करेंगे अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बरकरार नहीं रही और ऐसे ही इजाफा होता रहा तो इन्हें जो ट्रांसपोर्ट लाने में भी दुश्वारी का सामना होगा। जी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया। राइडर्स का कहना है कि पहले ही सवारियों में कमी थी, लेकिन अब अखराजात बढ़ने से आमदन मजीद मुतासिर हो गई है। दिन भर मेहनत के बावजूद सिर्फ पेट्रोल के अखराजात ही पूरे हो पा रहे हैं। मजीद जानते हैं दुआशकिल प्राचा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबार आगे ही नुकसान में जा रहे हैं और ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके शहरियों को मजीद मुश्किलात में जो है वो डाल दिया है। और मेरे साथ इस वक्त बाइकिया राइडर्स मौजूद हैं, बाइक्स चलाते हैं, उनसे जान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनको क्या नुकसानात हो रहे हैं। मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता रात एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, तो इससे आपके कारोबार में क्या जो है वो नुकसान देखने को मिलेगा? मैडम, असल कारोबार तो हमारे ही ज़्यादा घाटे में जाएगा, क्योंकि पेट्रोल भी हम लोग चलते हैं सारा दिन, पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है और ये नहीं पता चलता कि दिन में हम लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और रात को जो ये अचानक पेट्रोल बढ़ा, इस वजह से तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस टाइम हम सुबह से आए हुए हैं और काम हमें बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि जो सवारियाँ आती हैं वो भी बाइकिया पे जाने वाले तकरीबन सारे गरीब लोग ही होते हैं, तो वो भी इतना अफोर्डेबल नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल को कम से कम करें, क्योंकि जो बाइकिया पे सफ़र करेगा वो कोई करोड़पति या कोई लखपति इंसान सफ़र नहीं करेगा। बाइकिया पे जो सफ़र करेगा वो भी गरीब बंदा ही सफ़र करेगा और हम भी गरीब हैं। तो इसीलिए चाहिए गवर्नमेंट को कि पेट्रोल सस्ता कर दें। बस हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, और ख़ास कर बाइकिया वालों के लिए कोई डिस्काउंट किया जाए या उनको कोई ऐसा कार्ड बना के दिया जाए जिस पे बाइकिया वाले अपनी बाइज्जत रोज़ी करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाए। यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि पेट्रोल सस्ता कर दो। या अल्लाह कुछ करो इस गवर्नमेंट के बारे में, हाथ जोड़े हमने और कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, जहाँ बाकी ममालिक में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या बोलना, हुकूमत को बोल के कुछ फ़ायदा तो है नहीं। अब जो है हम लोग को, हम सुबह के निकले हुए शाम को घर जाते हैं तो सिर्फ पेट्रोल के पैसे पूरे होते हैं, घर के ले जाने के लिए बचत नहीं होती। लोग समझते हैं हम लोग बहुत कमा के जा रहे हैं। हाँ, पहले कुछ बच जाता था, अभी ये है कि अब पेट्रोल के पैसे पूरे हो जाते हैं। अब सवारी, जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास तबका बाइकें यूज़ करता है, गर्मी है, धूप गर्मी से बचने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अब हुकूमत चाह रही है कि वो भी ख़त्म हो जाए, गरीबों को वो भी रोज़गार ख़त्म हो जाए। कि जहां बाकी ममालिक में पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल की कीमतों को जल्द से जल्द जो है वो कम किया जाए। जी। ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन के सदर इमदाद हुसैन नकवी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हमने 15% किराया बढ़ा दिया है। हुकूमत हमें सब्सिडी मत दे, बल्कि टूल टैक्स में 50% कटौती करे। मुकामी ज़ख़ीरा दोज़ों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और फिर पाक अमेरिका की जंग की जो सूरत हाल है, इस तनाजुर में जो फ्यूल की कीमतें हुकूमत पाकिस्तान ने बढ़ाई हैं, गुज़िश्ता दिनों जो है वो मुस्तकिल फ्यूल की कीमतें बढ़ भी रही हैं, कम भी हो रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात एक बार फिर आवाम पर जो है वो पेट्रोल और डीजल का बम गिरा दिया गया। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन के सदर इमदाद हुसैन नकवी साहब। हमारा स्टांस इस पे ये है जी कि फ्यूल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ हमारी जो अदर कमोडिटी है, जिसमें हम मोबाइल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स हैं, इनकी प्राइसेस भी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल कास्ट है वो बढ़ जाती है। जब ऑपरेशनल कास्ट बढ़ जाती है तो फिर मजबूरन हमें इसको एंड यूज़र की तरफ मुंतकिल करना पड़ता है, अपने किरायाजात बढ़ाने पड़ते हैं। अभी भी 27 रुपये 77 पैसे जो है वो इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, और इसकी परसेंटेज हमारे कारोबार में, हमारे किरायाजात में तकरीबन 15% की बनती है। तो हम 15% अपनी गाड़ियों के किरायाजात में इजाफे का ऐलान करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये 15% इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा महंगाई को, जितना हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर कर रहे होते हैं। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम सूबाई हुकूमतों से ये अपील करूँगा कि जब तक मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जंग की कैफियत में मुब्तला रहती है, उस वक्त तक ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अप एंड डाउन होती रहेंगी। लेकिन इसकी आड़ में मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं और अशिया खुर्दनोश की शॉर्टेज कर देते हैं। अगर हमारी हुकूमती मशीनरी मुतहर्रक हो तो इन चीज़ों को कंट्रोल में लाया जा सकता है और प्राइस भी कंट्रोल में रहेगी। ये भी मुतालबा किया है जो मकामी सतह पर जो ज़ख़ीरा दोज़ हैं, खा वो अशिया खुर्दनोश के हों या पेट्रोल मसनूआत के हों, उनके ऊपर जो है वो मकामी सतह पर कड़ी निगरानी करने की ज़रूरत है, ताकि ज़ख़ीरा दोज़ शहरियों को महंगे दामों फल फ्रूट, अशिया खुर्दनोश और महंगे दामों फ्यूल ना बेच सके। जी।
IBA कराची में छठी नेशनल एजुकेशन समिट 2026 का इनेकाद। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन अल्फ़ा पर अहम मुकालमा। माहिरीन का मुस्तक़बिल की तालीम के चैलेंजेस पर इज़हार ख़याल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। IBA कराची में छठी नेशनल एजुकेशन समिट 2026 का इनेकाद किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत हुई है। मज़ीद तफ़सीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से जानते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल, IBA कराची में छठी नेशनल एजुकेशन समिट 2026 का इनेकाद किया गया। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि छठी नेशनल एजुकेशन समिट 2026 में आमद पर मुंतज़मीन ने सुबह वज़ीर का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्ला की जानिब से वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का इस्तकबाल किया गया। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेशन अल्फा के मौजूद पर माहिरीन के तालीम का अहम मुकालमा देखने को नजर आया। IBA कराची में मुनक़्क़िदा समिट में फ्यूचर रेडी लर्नर्स की तैयारी और जदीद तालीमी तकाज़ों पर मुख्तलिफ सेशन जारी हुए। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन अल्फा, स्टूडेंट लीडरशिप और 21वीं सदी की महारतों पर माहिरीन ने प्रेजेंटेशन पेश की, जबकि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ज़ाहिद अली अब्बासी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में जदीद तालीमी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। जबकि माहिरीन तालीम का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में तलबा को सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि लीडरशिप और तकनीकी सलाहियतों से आरास्ता करना होगा। रफिया जावेद मल्ला की जानिब से कहा गया कि AI नेटो नस्ल मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की तकाज़ों पर उन्होंने ज़ाहिर ख्याल किया, जबकि दी ह्यूमन एडवांटेज इन दी एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेशन में इंसानी महारतों की अहमियत को भी उजागर किया गया। ताहम इस तकरीब में महकमा तालीम की जानिब से मीडिया को मदऊ नहीं किया गया था। जी, ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फ़ी औन सोना $23 महंगा होकर $4,708 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना $2,300 महंगा, 1 तोला चांदी $92 बढ़कर $8,049 पर आ गई है। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से जानते हैं। वसीम, बताइएगा। वसीम से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया है। फ़ी औन सोना $23 महंगा होकर $4,708 तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना $2,300 महंगा, 1 तोला चांदी $92 बढ़कर $8,049 पर आ गई है। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आया है। फ़ी औंस सोना $23 महंगा होकर $4,708 तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना $2,300 महंगा, 1 तोला चांदी $92 बढ़कर $8,049 पर आ गई है। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आया है। फ़ी औंस सोना $23 महंगा होकर $4,708 तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना $2,300 महंगा, 1 तोला चांदी $92 बढ़कर $8,049 पर आ गई है। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आया है। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से जानते हैं। वसीम, बताइएगा, कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है और आलमी मार्केट में सोना जो है $23 महंगा होकर $4,708 फ़ी औंस तक चला गया है। इसी का असर हम देख रहे हैं कि मुकामी मार्केट में पड़ा है और मुकामी मार्केट में भी 1 तोला सोना जो है तकरीबन $2300 महंगा होकर 4,93,162 की सतह पर आ गया। इसके 10 ग्राम सोना $1971 इजाफे से $4,22,806 का हो गया है। इसी तरीके से हम देखें तो चांदी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और फ़ी तोला चांदी जो है $92 बढ़कर $8,049 पर आ गई है। जी वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नेशनल सेमीकंडक्टर HR डेवलपमेंट प्लान के तहत जामिया NED में टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 3000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। आज बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत
NED यूनिवर्सिटी में आज एक टेस्ट जो है वो ख़ुसूसी तौर पर इसका इनेकाद किया गया है और इस टेस्ट में तलबा व तालिबात की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। प्रोफेसर साद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस टेस्ट को कंडक्ट करवाने से जानते हैं कि इस टेस्ट का असल मकसद क्या है। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, IT की दुनिया है और IT की दुनिया में इनकलाबी कदम जो है वो रखने को हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं। ये जो टेस्ट हैं, कितने स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं? मरहलावार ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है तो कितने दिन का है और इसका क्या मकसद है? जी बहुत शुक्रिया, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि हर मुल्क के लिए डिजिटल खुद मुख्तारी एक संगीन अहमियत, बहुत शदीद अहमियत रखती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक प्रोग्राम है, नेशनल सेमीकंडक्टर HR डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत पाकिस्तान भर में 7,000 तलबा और तालिबात को तैयार करके इंडस्ट्री के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। 5 साल का ये प्रोग्राम है। तो उसका पहले मरहले में हम इस वक्त 3,000 लोगों का हमने टेस्ट कंडक्ट किया है अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें ये टेस्ट NED यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, क्वेस्ट नवाबशाह, IBA सक्कर, यूटम्स कोयटा, मिट्टी धरपारकर, इसके अलावा UET लाहौर और केस इस्लामाबाद में बैक वक्त हुआ है। दिस वॉज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 1 घंटे की इसकी ड्यूरेशन थी और इसमें तकरीबन 80 शहरों से और 126 यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने शिरकत की है। और इस टेस्ट के इनेकाद के बाद हम इंटरव्यूज़ करेंगे और इसमें से 200 तलबा तालिबात को शॉर्टलिस्ट करके 4 महीने की ट्रेनिंग से गुजारा जाएगा, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान इनको 50,000 रुपये की स्टाइपेंड भी देगी और उसके बाद हमें इनको जॉब्स के अंदर, IC डिज़ाइन की जॉब्स के अंदर कराना है। इसमें हमारे साथ जो पार्टनर्स हैं ये सर सैयद यूनिवर्सिटी और UIT यूनिवर्सिटी है और ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के ताउन और इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। ठीक है जी। मतलब इसका मतलब है कि प्योरली वफाक का ये प्रोजेक्ट है जो कि इसका यहाँ पे टेस्ट हैं और जैसे कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि 4 महीने के जो कोर्सेज हैं वो इन बच्चों को, तलबा को करवाए जाएंगे और जदीद IT और डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक़ उनको तरबियत जो है वो फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे जी। डॉक्टर रुथ KM फाओ सिविल अस्पताल कराची में तलबा की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का इनेकाद। BSN फर्स्ट और थर्ड ईयर के तलबा ने सेहत बख्श ग़िज़ाएँ और मुख्तलिफ सूबों के रवायती खाने पेश किए। प्रोफेसर खैरुन्निसा के मुताबिक तलबा ने तमाम खाने खुद तैयार किए, जिनमें हॉस्पिटल डाइट भी शामिल थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर रुथ फाओ सिविल हॉस्पिटल पे मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त BSN फर्स्ट ईयर और BSN जो है वो थर्ड ईयर के तलबा की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो पेश किए गए हैं, जिनमें अप्लाइड न्यूट्रिशन भी है, इसके साथ साथ कल्चर, हेल्थ और सोसाइटी भी है। इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाइए कि इस वक्त तलबा की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट यहाँ पर पेश किए गए, जिसमें कल्चरल प्रोजेक्ट भी है, इसके साथ साथ देसी फूड और क्या हेल्थ के लिए बेहतर खाना खाना चाहिए, उस हवाले से भी तलबा की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट जो पेश किए गए हैं। प्रोफेसर खैरुन्निसा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैम बताइएगा, मुझे बड़ा ही अच्छा एक एनवायरनमेंट लग रहा है, किस किस्म के प्रोजेक्ट यहाँ पर पेश किए गए हैं और कैसा है, बच्चों का आउटकम कैसा देखिए, बच्चों ने बहुत एफर्ट की है, सब हैंडमेड आपने देखा होगा चीज़ें हैं और नर्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये इनके करिकुलम का पार्ट है। अप्लाइड न्यूट्रिशन जो कि 2nd सेमेस्टर फर्स्ट ईयर ने प्रेजेंट किया है, जिसमें डिफरेंट डाइट, जिस तरह डायबिटीज़ है, डायरिया है, तो कौन सी डाइट दी जाती है। साथ साथ हमारा जो 3rd ईयर है 6th सेमेस्टर, उन्होंने कल्चर, हेल्थ, सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है। आप देखें कि हम उनके रिलीजन, उनके बिलीव, उनके कल्चर से रिलेटेड डाइट क्या दे सकते हैं पेशेंट को, और ये सारा का सारा बाकायदा हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, करिकुलर का हिस्सा है और पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है हमने। तो हमारे कल्चर में कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डाइट है जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है और हमारा कल्चर क्या कहता है, तो कल्चर को कोरिलेट करके हमने डाइट को रखा है और इसमें तमाम चीज़ें हैंडमेड बनाई हैं। हमने बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, KP चारों सूबों को प्रेजेंट किया है। हमारी टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान को प्रेजेंट किया है। साथ में उनकी अच्छी अच्छी डाइट्स बनाई हैं और बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल जो अदर इदारों के हैं हमारे पास, डाओ के, सिविल के, खारादर जर्नल से, तो डिफरेंट जगह से आके उन्होंने विज़िट किया है, उनसे क्वेश्चंस किए हैं बच्चों से डिफरेंट डाइट्स के मुतालिक। तो वो बहुत अच्छा सा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है। आज एक दिन का ये वेल नोन होना चाहिए। एक ही दिन का ये आज प्रेजेंटेशन? ये बिल्कुल एक ही दिन की वर्कशॉप है हमारी और बहुत अच्छा सा, माशाल्लाह आपने खुद देखा होगा कि सबने बहुत दिल से काम किया है। और सबसे बड़ी चीज़ें आप देखें कि ये जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को दिखा रहे हैं हम, ये साथ में KP जो है हमारा KP मौजूद है सुबह।
आगे आप जाएंगे तो हमारा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान का कल्चर नज़र आएगा और उनके साथ साथ डाइट भी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा। मुख्तलिफ कल्चर की डाइट भी बताई गई है कि वो लोग क्या चीज़ खाते हैं और हमें किस तरह जो अपनी डाइट बेहतर करनी है और किस तरह हमें, अगर हम बीमार होते हैं या मुख्तलिफ बीमारियों में, हमें किस किस्म की जो है वो डाइट खानी चाहिए। कराची में मुनफरिद स्पोर्ट्स इवेंट की इख्तितामी तकरीब जारी। कराची रेसलिंग पिजन क्लब में इन जानिब से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का इनेकाद किया गया है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा जा रहा है। मुंतज़मीन का कहना है ये खेल गुज़िश्ता 13 बरस से कामयाबी के साथ जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, KRPC की जानिब से आज यहाँ पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब का इनेकाद किया गया है। उन लोगों ने जो रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट किए और किन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आज यहाँ पे इनेकाद है और KRCP है क्या, ये हम जानेंगे इसके डायरेक्टर शुएब से। शुएब, आप हमें बताइएगा। कराची रेसिंग पिजन क्लब, जिसको हम KRPC कहते हैं, ये पिछले 13 साल से कराची में रेसिंग पिजन्स की स्पोर्ट्स की रेसेस को ऑर्गेनाइज कर रही है और मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ कराची रेसिंग पिजन क्लब शोएब खान अपनी टीम के साथ, पूरी कोर मैनेजमेंट के साथ इस रेसेस के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता हूं। और इस साल हमने 5 रेसेस को ऑर्गेनाइज किया। मौसमी हालात की ख़राबी की वजह से हमारी ज़्यादा रेसेस नहीं हो सकी और आज की तकरीब का इनेकाद भी 2025-26 में मुनक़्क़िद की गई। इन 5 रेसेस में जो फैंसियर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और पोजीशंस ली, उनको उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आज मुनक़्क़िद की गई है। डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद था जिनका यही कहना था कि इस किस्म की जो रेस होती है ये मुल्क के जो है मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है खेली जा रही है और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए City 24।